Good evening. Om Shanti. It is such a pleasure, honor, and privilege to be among all of you. It is your 16th foundation year, so congratulations. And I was just meeting Doctor just before coming here, and he looked so calm and compassionate, and it is exactly what Kalamji was saying. So it was heartening to meet you even briefly, but he was also talking about all the stress that all of you experience, and for next 1 hour we'll try to talk about different things. But before we begin, can we take a moment of silence? Just 1 minute of silence. So just sit comfortably wherever you are. What would you prefer, Hindi, English, or mix of both? Okay. So just sit comfortably. Relax your body. And just for a few moments, come into the awareness that I am so fortunate that I have been chosen for a very important role. I am an instrument of God. I get an opportunity to treat people, to heal them, and earn blessings. Yes, there are challenges, but at the same time, there is so much gratitude in my heart for my role, for helping people, and of being service to the society. And now I reflect, is there something that I can change to be a better person, a better healer? Can I bring something? Can I transform something so that I can play my role more efficiently? And what is that I can transform? What is that one thing that I want to change in myself? Try to figure it out. Okay. Om Shanti. You can open your eyes now. आप कुछ डॉक्टर्स बैठे होंगे, कुछ स्टूडेंट्स बैठे होंगे, डॉक्टर्स बनने वाले होंगे, और हम सारा दिन जब लोगों के साथ मिलते हैं, one is that we treat them, other is that we heal them. Is there a difference? Is there a difference? Treating a patient, but also contributing in their healing. Can we contribute in their healing? So treatment is, you're very, very skilled. आपको पता है, एक्सपर्टीज़ है, क्या क्या उनको ट्रीटमेंट देना है, कैसे सर्जरी करनी है, everything. But when a patient comes to a doctor, क्या वाइब्रेशन लेकर के आता है? The patient and the family. Just bring that scene, because we are very good doctors, but sometimes we are only so stressed. आपको स्ट्रेस होता है? किस किस को स्ट्रेस होता है यहाँ पर? किस किस को स्ट्रेस होता है? आपको लगता है आपका जो स्ट्रेस है वो पेशेंट तक पहुँचता होगा? पहुँचता होगा ऐसा आपको लगता है? पेशेंट से पहले वो किसको पहुंचता होगा? उनको भी बाद में पहुंचेगा, लेकिन जो आपका स्ट्रेस है वो पहले किसको इफ़ेक्ट करेगा? आपकी बॉडी को करेगा कि नहीं करेगा? एंड व्हाट इज़ दैट स्ट्रेस एक्चुअली? कैसे उसको आइडेंटिफाई करते हैं? स्ट्रेस नॉर्मल है? इफ़ आई एम अ डॉक्टर एंड आई एम अ सर्जन, तो स्ट्रेस तो होना ही है. ट्रू? राइट, रॉन्ग? राइट. वरना स्ट्रेस इज राइट. हाँ जी. इज इट्स ऑलमोस्ट लाइक सेइंग कि बीमारी है लेकिन ठीक है. मैं डॉक्टर के पास जाऊँ, डायग्नोस होकर के बीमारी आती है,
पर आई कीप टेलिंग द डॉक्टर, नहीं सर ये बीमारी ठीक है, ये बीमारी ठीक है. दर्द ठीक हो सकता है. When I experience stress, is it a comfortable thing or it's uncomfortable? अच्छा लगता है कि डिस्कम्फर्ट होता है. कैसे उसको डील करना है वो बाद में देखेंगे. दैट इज सेकेंड स्टेप. पहले तो ये रियलाइज़ करना है कि ये जो एक हो गया ना कि ये नॉर्मल है, ये तो सबको होता है. हम जब मेडिकल रिपोर्ट आती है ना, हम कई बार टेस्ट आदि कराने जाते हैं लैब में, तो उसके अंदर एक नॉर्मल रेंज होती है और एक हमारा लिखा हुआ होता है. ठीक है, वी डोंट नो नथिंग. हाँ, वी हैव नो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मेडिसिन. पर हम लोग कैसे थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं कि हमारा जो फिगर है वो किसके अंदर आना चाहिए, नॉर्मल के अंदर. तो हमें थोड़ा सा रिलीफ लगता है कि ये सब नॉर्मल के अंदर सेट होता है तो ठीक ही होगा. अगर किसी दिन वो नॉर्मल वाला जो सेगमेंट है वो गलत हो जाए, तब क्या होगा. किसी को बीमारी होगी, उसको लगेगा वो ठीक है, कि कोई ठीक होगा उसको पता ही नहीं चलेगा कि उसको बीमारी है, बिकॉज व्हाट वाज नॉर्मल रेंज वही गलत हो गया. नाउ एज अ सोसाइटी there is a lot which is not okay, which is not normal, which is pain, which is depleting us. But हमने उसको क्या कह दिया कि this is okay. Stress normal. Anger, sir. We also have people from the police force. Anger. हम लोग not normal. नहीं तो हम कई बार कहते हैं ज़रूरी है, ज़रूरी है, और करते थोड़ी ना है, आ जाता है. उन्होंने काम ही ऐसा किया था कि करना पड़ता है. सो वी से पॉजिटिव स्ट्रेस, वी से राइटियस एंगर. कंपटीशन, very nice words we give. Healthy competition, harmless gossip. I was with another program just before this. It was group of naval officers. They said another one, constructive criticism. It is criticism, but it is constructed. So lot of negative energy which is depleting me, but just putting a nice word behind that will not make it positive. Do you remember the formula of stress, anybody? We used to do stress in physics. पहले तो हमारी language नहीं थी. टेंशन होता था, कभी कभी एग्ज़ाम में होता था. देन इट बिकेम स्ट्रेस. टुडे इज़ नॉट इवन स्ट्रेस. व्हेन यू गो टू स्कूल्स एंड कॉलेजेस, टुडेज चिल्ड्रन डोंट से स्ट्रेस, दे से आई एम. एक स्टेप और आगे बढ़ गए स्कूल के जो बच्चे हैं. दे डोंट से आई एम स्ट्रेस, दे से आई एम एग्जॉस्टेड. सर और आगे चला गया. एग्जॉस्टेड तक भी ठीक था. दे से आई एम डिप्रेस्ड. जो इलनेस है वो मूड की तरह बोल रहे हैं. वो मॉर्निंग में आके कहते हैं आई एम वेरी डिप्रेस्ड टुडे, और आई एम के साथ क्या बोलना होता है उसमें बहुत ध्यान देना होता है. बिकॉज इफ़ यू कीप सेइंग समथिंग विद आई एम अगेन एंड अगेन, एंड इवन इफ यू आर नॉट दैट, व्हाट विल हैपन, you will become that, because you are affirming that again and again. So what was the formula for stress when we were in physics? Let's see who remembers. Force upon area, है ना, force upon area. Today our stress is stress equals to force. There is no area. Force is all the external pressures. ठीक है? So the external pressure for you could be very difficult surgery. It could be patient who's in lot of pain. It could be family which has lot of financial insecurity. So all this is external pressure which comes. Now tell me one thing. If there are 10 doctors and have a patient who is going through similar circumstances, does every one of that doctor experiences stress? External factors लगभग similar हैं आपके लिए. Pressure भी है, कुछ ना कुछ जो जिनके साथ. See, why your profession is slightly more difficult. Why? There is a one very positive side also, but another difficult side is that you are meeting day in and day out people who come with what vibration? What vibration they're carrying? Everybody who enters a hospital, चाहे वो patient है, चाहे वो patient की family है, चाहे friend है, वो आपसे जब मिलते हैं तो वो कौन सा vibration आपको देकर जाते हैं? What is that vibration? Is working in a hotel different from working in a hospital?
Do you agree? What is the vibration in an hotel? Everybody who comes there is happy and celebrating. Everybody who comes here, negative. Pick up the vibration and negative. क्या लेकर के आ रहे हैं वो सारे एक एक जिनसे आप मिल रहे हैं? हाँ जी, नेगेटिव में भी आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें. पेन एंड स्ट्रेस, हाँ जी, सफरिंग, लॉट ऑफ सफरिंग, fear, expectation, lot of expectation, thinking that doctor is, are you God? Are you God? No, but they think you are God. And you will have to remember that every single person who comes in your hospital also comes with their karmic account. आप ट्रीटमेंट दे सकते हैं, बेस्ट ट्रीटमेंट दे सकते हैं, उसके बाद भी वो किसके साथ आते हैं? वो अपने भी कर्मा के साथ आते हैं. एंड दैट इज़ वाई सो मेनी टाइम्स यू मस्ट हैव रियलाइज समथिंग विच वॉज सो ईजी tends to get complicated, and sometimes which was something very complicated became easy, क्योंकि वो जो लैंग्वेज हम कहते हैं ना, अभी दवा नहीं, दवा के साथ साथ क्या करो? दुआ. that is that person's karma. Because if he has accumulated lot of dua, something magical or miracle can also happen. That may not be just your treatment. And sometimes वो accumulated नहीं है, so you could give the best treatment, then also things might not work. We cannot as a doctors ever go in guilt. As long as we haven't made a mistake, हमने अपनी तरफ से सब ठीक किया है, we have made no mistake, we can't go in guilt, because initially that is also so much pressure, because you do everything, and then also if you're not able to save somebody, there is so much guilt, and that guilt is going to affect next patient, and that's not fair on them. So there is expectation, there is fear, there is worry, there is pain. All this is negative vibration. Do you think it will affect you? Affect पड़ेगा इसका कि नहीं पड़ेगा? पड़ता है कि नहीं पड़ता है? अब हमें क्या करना पड़ेगा? अपने आप को इससे क्या करना पड़ेगा? अपने आप को इससे प्रोटेक्ट करना पड़ेगा. जितना इमोशनल रेजिलियंस एक डॉक्टर को चाहिए, उतना शायद मॉल में बैठे हुए को नहीं चाहिए, होटल वाले को नहीं चाहिए. लेकिन एक जो हॉस्पिटल में बैठा हुआ है, उसका इमोशनल रेजिलियंस बहुत हाई चाहिए, बिकॉज डे इन एंड डे आउट दे आर ब्रिंगिंग दैट वाइब्रेशन. जैसे आप किसी भी पेशेंट को ट्रीट करते हैं, सो फिजिकली डू यू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फर्स्ट? यू प्रोटेक्ट योर सेल्फ ना, ऐसे तो ट्रीट नहीं करते. यू विल वॉश योर हैंड्स, यू विल वेयर मास्क, यू विल वेयर ग्लव्स, बिफोर सर्जरी यू विल वेयर जो भी प्रोटेक्टिव केयर है. क्यों? क्योंकि उसका इन्फेक्शन आपको नहीं लगना चाहिए. दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. यू विल ट्रीट देम, लेकिन ट्रीट करने से पहले उनका इन्फेक्शन आपको नहीं लगना चाहिए. दैट इज़ एट द फिजिकल लेवल. नाउ वी आर नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट द फिजिकल लेवल, वी आर ऑल्सो टॉकिंग एट द लेवल ऑफ one is physical, the other is emotional. Actually, आपको जितनी दुआएं मिलती हैं उतना किसी और को मिल सकती हैं क्या? जो उसका ऑपोजिट साइड है. एनीबडी यू ट्रीट, कोई मदर आती है, कोई आता है, दे सरेंडर देयर फैमिली पर्सन टू यू, सरेंडर करते हैं. फिर आप भले कहते हैं हम भगवान नहीं है, पर आप ट्रीट करते हैं. वो तो आपको क्या समझते हैं? समझते हैं कि नहीं समझते? और वो सिर्फ आपको उतने दिन याद करके थैंक्स नहीं करते हैं. यू सेव्ड देयर फैमिली मेम्बर. इट्स अ वेरी वेरी बिग थिंग. एवरी टाइम दे सिट इन साइलेंस एंड दे आर प्रेइंग, हु आर दे थैंकिंग? Who are they thanking? It is not once. They will come, they will thank you so many times, they will bring gifts for you. इतने दिल से वो दुआ निकलती है ना, वो तो किसी के लिए भी नहीं निकलती. अब जिसको इतनी दुआएं मिलती हो, वो तो कैसा होना चाहिए? वैसे कैसा होना चाहिए वो व्यक्ति? उसको स्ट्रेस हो सकता है क्या? Because so much positive energy flowing, but at the same time, so many blessings. Never forget this, huh? There's no other profession that earns so many blessings. बाकी सब प्रोफेशन को पता है क्या करना पड़ता है? काम अलग, सेवा अलग. एक बिजनेसमैन है, वो काम अलग करता है, फिर वो सेवा अलग करता है कि सेवा करके पुण्य कमाएंगे, सेवा करके दुआएं कमाएंगे. आपको अलग से सेवा करने की ज़रूरत ही नहीं है.
And that is why it is always said service to society, service to society. So every minute आप क्या कर रहे हैं? आप सेवा कर रहे हैं, आप दे रहे हैं, आप दे रहे हैं, आप दे रहे हैं, और रिटर्न में क्या मिल रहा है? ब्लेसिंग्स, ब्लेसिंग्स, ब्लेसिंग्स. सो एक्चुअली हैप्पीएस्ट कौन होना चाहिए? कौन होना चाहिए? और पता है दुआएं क्या करती हैं? परमात्मा जब हम पढ़ते हैं तो दुआओं के लिए परमात्मा हमें कहता है धन संभव को संभव कर सकता है, मनी पॉसिबल को पॉसिबल कर सकता है, लेकिन दुआएं असंभव को संभव कर सकती हैं, विच इज़ इम्पॉसिबल, बिकॉज दैट इज़ प्योर पॉजिटिव एनर्जी दैट कट्स योर नेगेटिव कर्मा एंड क्रिएट्स मिरेकल इन योर लाइफ. दैट इज़ द पावर ऑफ ब्लेसिंग्स, कि ब्लेसिंग्स लिफ्ट की तरह काम करती है जीवन में. आपको 50th फ्लोर पर चल करके जाना है, आप पहुंच जाएंगे, लेकिन मेहनत ज़्यादा, समय ज़्यादा, एफर्ट ज़्यादा. वहीं पर इफ़ यू अर्न लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स, लिफ्ट से जाने में कितना टाइम लगता है? कम समय, कम मेहनत, जल्दी प्रोग्रेस. प्रोवाइडेड you take care of yourself. There is no other profession where you earn these many blessings. So lot of gratitude. You are instrument. Definitely you are instruments of God. But to be part of such a profession, it is really, really भाग्य जिसको कहेंगे, fortune ही है. अब थोड़ा सा बस अपने को प्रोटेक्ट करके रखना है. जैसे फिजिकली अपने को प्रोटेक्ट करते हैं, ऐसे इमोशनली अपने को प्रोटेक्ट करना है. इमोशनली ऐसे कैसे करना है? We'll learn this today. Do you come across patients who are very irritating? Patients are irritating sometimes. Why are they irritating? Because हाँ जी, but they are in pain. अगर आपको ये याद रहता कि they are in pain तो आपको irritating नहीं लगते. तब तो आपको क्या आता उनके प्रति? तब तो क्या आता आपको उनके प्रति? Compassion. But आप उनका what is that is irritating about them? What do they do? Why do we इतना irritating patient है? Before we read ना, अंदर आने से पहले उसका नाम पढ़ के हमें कई बार हो जाता है अच्छा अभी next patient ये है. Why do we find them so irritating? Because behavior. What is something about their behavior that is irritating? What is it? What do they do? Some patients. कोई ऐसे होते हैं ना, एक ही बात बार बार पूछते जाते हैं. पूछते हैं कि नहीं पूछते हैं? क्यों उनको बात समझ में नहीं आती? हाँ जी, क्यों उनको बात समझ में नहीं आती? क्यों सेटिस्फाई नहीं हो पाते वो? दे वॉन्ट टू हियर समथिंग एल्स. वॉट डू दे वॉन्ट टू हियर? पता है एक बात क्या सब सुनना चाहते हैं डॉक्टर से? ठीक हो जाएगा. बोलना चाहिए ये उनको कि नहीं बोलना चाहिए? हाँ जी, बोलना चाहिए उनको कि नहीं बोलना चाहिए? हाँ जी, विद कॉशन. यू नो वाई? बिकॉज समटाइम्स अभी क्या कहेंगे, नहीं वी कांट लाई टू आवर पेशेंट, वी हैव टू टेल देम व्हाट इट इज़. बट समटाइम्स इवन विद बहुत छोटी छोटी बीमारी में भी व्हेन यू गो टू अ डॉक्टर, इवन बिफोर यू बिगिन द ट्रीटमेंट, अगर डॉक्टर साहब कह देते हैं ना कि ठीक हो जाएगा, तो क्या हो जाता है? मन शांत हो जाता है. और जब मन शांत हो जाता है तो हीलिंग शुरू हो जाती है. और जब हीलिंग शुरू हो जाती है, जो कभी कभी इम्पॉसिबल था वो भी पॉसिबल हो जाता है. लेकिन अगर हलचल के अंदर है, आप कितना भी बेस्ट ट्रीटमेंट दे दो, इसलिए कहते हैं कि हील दाई सेल्फ, हील योर सेल्फ. यू कैन ट्रीट बट आई विल हैव टू हील माई सेल्फ. And if I have to heal myself, my mind will have to be at ease. But before my mind is at ease, whose mind needs to be at ease? My doctor's mind needs to be at ease. If my doctor is experiencing stress, and sometimes, you know, that patient waits 24 hours to meet you for 2 minutes. आपके लिए रूटीन है, आपके लिए रूटीन है, आपके लिए बहुत सारे पेशेंट हैं, उसके लिए आप एक डॉक्टर है, वो पूरा शेड्यूल एडजस्ट करके, फैमिली एडजस्ट करके. नाउ आई एम नॉट सेइंग दैट इंस्टेड ऑफ 2 minutes गिव देम 20 minutes. वो नहीं हो सकता. आपको भी बहुत सारे पेशेंट हैं, लेकिन वो 2 minutes में कई बार एनर्जी कैसी होती है? होते 2 ही मिनट हैं, हम 2 मिनट से ज़्यादा दे भी नहीं सकते हैं, लेकिन 2 मिनट में हमारी एनर्जी कैसी होती है कि हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं है. वी सो रश्ड. ऐसे ऐसे तेज़ी से सब आते हैं और तेज़ी से सब चले जाते हैं, और कभी कभी समझ ही नहीं आता, और कभी कभी तो सब आपस में ही बात करके चले जाते हैं. Now when you are with me for 2 minutes, just talk to me for 2 minutes and talk to me in my language.
Don't talk to me in your language. It makes me more scared. And then what you're going to talk and how much ever you're going to be there, वो 2 मिनट आप डिसाइड करेंगे 24 आवर्स मेरे कैसे बीतेंगे और उसमें मेरी हीलिंग की स्पीड फास्ट होगी या स्लो होगी. Having a doctor who is not stressed, is calm, compassionate, is just going to increase my healing और वो पेशेंट जल्दी जाएगा आपके हॉस्पिटल से, प्रोवाइडेड आप चाहते हैं ना कि जल्दी जाए कि रहे लंबा समय. दैट इज ऑल्सो अ बिग क्वेश्चन. और जाए तो फिर वापस आए कि कभी नहीं आए, जाए तो वापस आए कि कभी नहीं आए. अ लॉट ऑफ इलनेस जो बॉडी के अंदर दिखाई देती है ना, इट मैनिफेस्ट इन द बॉडी आफ्टर 1 or 2 years, समटाइम्स 3 years. बिफोर दे मैनिफेस्ट इन द बॉडी वो कहाँ से शुरू होती हैं? Major blockages that you see in the body, the blockages are always here first. It could be fear, it could be trauma, aura test आदि होते हैं. They are here, then they go into your subtle body and then they manifest in your physical body. Now हम उनको ट्रीट करके भेज देते हैं और बीमारी कहाँ से निकालते हैं? शरीर से बीमारी को निकाल देते हैं. लेकिन कहाँ से बीमारी को नहीं निकाला अभी तक? कहाँ से? यहाँ से नहीं निकाला. वो हमारे को भी निकालना नहीं आता, उनका भी नहीं निकाल पाते हैं. एंड दैट इज़ वाई आफ्टर कपल ऑफ ईयर्स in so many cases we have to repeat the surgery. So now we need to first take care of ourselves because we just don't want to be doctors. We want to be happy doctors. We need to take care of ourselves also. कैसे अपने को प्रोटेक्ट करना है? There is somebody who is asking lot of questions. वो इतने questions इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि वो पेन में है. जब हम पेन में होते हैं तो हमें जल्दी नहीं समझ में आती कोई बात, नहीं आती हमें वो बात समझ में नहीं आती है. अभी एक और प्रॉब्लम क्या हो गया है? पहले हमारा कंप्लीट फेथ डॉक्टर के पास ऊपर होता था. वी हैड नो नॉलेज अबाउट एनीथिंग. टुडे विथ टेक्नोलॉजी, व्हाट हैज़ हैपेंड विथ टेक्नोलॉजी? व्हेन वी कम टू मीट द डॉक्टर्स वी हैव ऑलरेडी read everything and we are seeing things, I don't know if I could be wrong, people who had no side effect with some medicines for years, जब वो पढ़ते हैं ना कि उसके इतने साइड इफ़ेक्ट्स हैं तो उनको होने शुरू हो जाते हैं. आज तक नहीं हो रहे थे, उनको कुछ भी नहीं था बिकॉज दे डिडंट नो अबाउट इट. अब पढ़ लिया ना, अब पढ़ के लगता है कि मुझे भी ये साइड इफ़ेक्ट हो रहा है. सो व्हेन दे रीड सो मच, they come with so much information, there's a lot of chaos in there. I need a doctor who treats but also satisfies me in 2 minutes. बहुत टाइम हम नहीं दे सकते उनको. हम ये नहीं कह सकते कि हम उनके साथ टाइम बिताते रहेंगे. अब वो जो उनको सेटिस्फाई करेगा वो आपकी बात नहीं करेगी, वो आपका वाइब्रेशन करेगा. जब एज अ डॉक्टर हम अंदर से शांत होते हैं तो हमारा जो वाइब्रेशन है ना वो ऐसा काम करता है जैसे कोई बहुत परेशान और मंदिर में आकर के बैठ जाए तो उसको कितना सुकून मिलता है ना. दैट शुड बी माई फीलिंग कि मैं मिला इनसे एंड आई एक्सपीरियंस लॉट ऑफ सुकून, सोलेस. इज़ इट पॉसिबल? हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हाउ डू आई टेक केयर ऑफ माई सेल्फ? वहाँ पर वो प्रश्न पर प्रश्न पूछ रहे हैं. देर इज़ अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन, देर इज़ देयर, द प्रेशर इज़ देयर. देर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन प्रेशर एंड स्ट्रेस. देर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन प्रेशर एंड स्ट्रेस. प्रेशर इज़ एक्सटर्नल, नॉट इन माई कंट्रोल. स्ट्रेस इन माई कंट्रोल और नॉट. आपने स्ट्रेस की डेफिनेशन क्या बताई थी? फोर्स अपॉन एरिया. व्हाट इज एरिया? अच्छा, सिंपल एग्जाम्पल, ये टेबल यहाँ पड़ा है. अगर आप सबको ये टेबल उठाने के लिए कहें तो ये सबको इसका वजन सेम लगेगा कि डिफरेंट लगेगा? हाँ जी, विल यू बोलो बोलो. इट्स अ सिंपल थिंग ना. विल आपको ये उठाने के लिए कहें तो सेम लगेगा कि डिफरेंट लगेगा? डिफरेंट लगेगा. क्यों डिफरेंट लगेगा? स्ट्रेंथ डिफरेंट है. कौन सी स्ट्रेंथ? हाँ जी, फिजिकल स्ट्रेंथ. तो जिसकी फिजिकल स्ट्रेंथ ज़्यादा है उसको ये कैसा लगेगा? हल्का लगेगा. जिसकी फिजिकल स्ट्रेंथ कम है भारी लगेगा. ऐसे नहीं होता जब घर में कोई प्रॉब्लम आती है, हॉस्पिटल में कोई प्रॉब्लम आती है, एक ही प्रॉब्लम होती है, किसी को बहुत बड़ी लगती है, किसी को छोटी लगती है, किसी को बहुत छोटी लगती है. व्हाई? व्हाट इज़ डिफरेंट?
What is different? Here physical strength is different. There what is different? Emotional resilience. जितना आपका इमोशनल रेजिलियंस बढ़ता जाएगा, बात उतनी कैसे लगेगी? बात का कोई साइज़ नहीं होता है. कोई भी प्रॉब्लम का कोई साइज़ नहीं होता है. उसको राई का पहाड़ बनाना है, सुना ना ये लाइन, या पहाड़ को राई बनाना है, इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू. सो अगर आपकी इमोशनल रेजिलियंस बढ़ जाएंगी, देन वो बात छोटी लगेगी. नाउ आपका मन ये भी सोच सकता है कितना इरिटेटिंग है, ठीक है, ये मेरा मन थॉट क्रिएट करता है कितना इरिटेटिंग है. वहीं पर उस मोमेंट में यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बिकॉज इट्स नॉट जस्ट वन पेशेंट ना, इट इज़ वन आफ्टर द अदर. And for you it is routine, and for them they've been waiting for you 24 hours. ये बोलना नहीं चाहिए. They've been really waiting for you. So your 2 minutes are very precious for them. So you have to take care of yourself. तो आप अपने मन को उस समय क्या बोलेंगे? There is somebody who is asking lot of questions. क्या बोलेंगे आप अपने मन को? One is very irritating. The other is change the thought, transform it. You have to take care of yourself. What will you tell yourself? Tell yourself self-care and what was the topic? Self-care and compassion. You know, compassion अलग से build करने की ज़रूरत नहीं है. Self-care equals to compassion. Anybody who's taking care of the self is very, very compassionate. If you don't get irritated, then you are very, very compassionate. What can I tell myself in that moment about that patient? Instead of saying कि वो बहुत irritating है, क्या बोल सकते हैं अपने को? बहुत irritating है, बहुत सवाल पूछता ही रहता है, समझता ही नहीं है. That is one commentary. Change the commentary. If there is somebody who comes to you and says the same thing, आज आप घर जाते हैं, यू आर वेरी डिस्टर्ब्ड, एंड एनीबडी हु इज 2 डॉक्टर्स इन 1 होम, 2 जने एक साथ एक ही घर में 2 डॉक्टर्स हैं कहीं. अच्छा, सो नाउ यू आर ओके टुडे, ठीक है सर, यू आर ओके, बट योर स्पाउस कम्स बैक होम एंड सेज आपको नहीं पता था वो इतना इरिटेटिंग, वो ऐसे करता है, वो डॉक्टर ने ऐसे बोला, एंड शी इज़ ऑल फ्लस्टर्ड एंड एजिटेटेड. आर यू एबल टू हेल्प काम डाउन? उसका मूड ठीक कर पाते हैं? बात करके नहीं कर पाते. आप में से कभी किसी ने किसी का मूड ठीक किया है कभी कि नहीं किया है? नहीं किया है किसी का भी मूड ठीक. कैसे करते हैं किसी का मूड ठीक हम? उसको क्या बोलते हैं? बात हो जाती है कि तो उसने ऐसे किया, उसने ऐसे बोला, उन्होंने डांट दिया, सबके सामने डांट दिया, आपको नहीं पता इतनी बड़ी बात थी, सर ने ऐसा किया. वो बोलते जाते हैं. आप उनको क्या बोलते हैं? कोई बात नहीं. देखो अभी दूसरे में फटाफट आंसर आ जाता है. दूसरे को ठीक करना होता तो हम कहते हैं कोई बात नहीं. फिर क्या कहेंगे? नेक्स्ट लाइन बोलो, सब ठीक हो जाएगा. थर्ड लाइन बोलो, चिंता मत करो. तो दूसरे को कहेंगे कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो, जाने दो. ऐसे बोलते हैं ना, उसको बोलते जाते, लेट गो करो ना, कौन सी बड़ी बात है, वो तो है ही ऐसे ना, उनके बारे में सोच के अपना मूड क्यों ख़राब कर रहे हो, है ना. हम बोलते जाते फिर धीरे धीरे थोड़े से वो ठीक हो जाते हैं कि नहीं हो जाते, उनको ठीक कर लेते हैं. ठीक है. अब जब हम ऊपर नीचे होते हैं और हमें कोई कहता है छोड़ो ना, तो हम क्या कहते हैं? कैसे छोड़े? जाने दो ना. फिर हम क्या कहते हैं? क्यों जाने दे? जाने क्या दे? हम तो ये बात को कभी नहीं छोड़ेंगे. एवरी टाइम वी से आई विल नॉट फॉरगेट दिस, सो मेनी टाइम्स वी से मैं ये बात कभी बोलने वाला ही नहीं हूँ. पीछे वालों को भी कहकर जाते हैं, मेरे जाने के बाद भी उनसे बात नहीं करना, नहीं तो मेरी आत्मा को. So every time I say that I am not going to let go, all I am saying is that I am going to live in pain. And nobody is giving me pain. People can say things negatively. There can be external pressures. Somebody can criticize, but they are standing there. They can't enter my mind and create thoughts for me. अपने मन का ध्यान. मन करता क्या है? मन का काम क्या होता है? मन का काम क्या होता है? हाँ जी. What does mind do?
not brain, mind. सारा दिन आपके पास मन है, क्या करता है सारा दिन? सोचता है. How many thoughts in 1 minute? How many? Too many. How many is too many? Around 60 to 70 thoughts. जिस प्रकार के thoughts चलते हैं, that is what I am feeling. That's it. I could be very, very comfortable. Is comfort and happiness different or same? Can I be very comfortable and still be very miserable? Is that a possible? So comfort is for the body and it is very good. There's nothing wrong in it. I could have a comfortable home, comfortable car, comfortable job, a lot of financial security, everything. But at the same time, I could be very, very stressed, depressed, very, very sad. This is quite a possibility. Why? It's like having two gardens in your home, एक आगे और एक पीछे. एक का तो आपने बहुत ध्यान दिया, बहुत मेहनत करी, बहुत मेहनत करनी पड़ी ना. Was it easy to become a doctor? There were hours and hours and hours of hard work, hours. That's when you finally got the title of becoming a doctor and then a surgeon. मेहनत करी तो डॉक्टर बन गए, मेहनत करी तो धन भी आ गया, मेहनत करते गए तो आ गया. आगे का गार्डन बहुत सुंदर है. धीरे धीरे सब कुछ ही आ गया. अच्छा घर भी बन गया, अच्छी गाड़ी भी आ गई. एवरीथिंग इज़ वंडरफुल. हमें लगा आगे का गार्डन ठीक हो जाएगा तो पीछे वाला अपने आप ठीक हो जाएगा, और पीछे वाले का ध्यान ही नहीं दिया. पीछे वाला गार्डन क्या था? एक था फिजिकल कंफर्ट और दूसरा था मन की खुशी. हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, तीनों के लिए मेहनत करनी होती है. हेल्थ के लिए भी करनी होती है, वेल्थ के लिए भी करनी होती है. एंड हैप्पीनेस इज द स्टेट ऑफ माइंड, विच मीन्स व्हाट यू आर थिंकिंग is what you will feel, and that is going to create your destiny. आपका एक thought. Now situation not in my control. How I respond in my control or not in my control. How I respond in my control or not in my control. And how much gap there is in between the situation and my response. कितना gap होता है? 1 second. Very, very little. And that response is going to create my destiny. And if I'm able to take right response, that shapes my right future. Let's get out of the hospital for some time, then we'll come back. थोड़े दिन पहले आपने एक scenario देखा था where the Indigo flight was not working. Do you remember that? You saw it on television. Did you see people reacting differently, or was it same? Same or different? Different. What were the reactions? It was an external situation. It can happen to any of us anytime. बोल करके नहीं आती है कोई भी बात. So it was an external situation. People had different commitments. Somebody had medical emergency. किसी का कोई exam था. Somebody was going for a wedding. Different. Now the situation came. They couldn't take their flight. Were the responses same or different? Different. क्या difference था? याद करो उसको. क्या difference था? He was very, very angry, was screaming at the ground staff, or what are the other responses that we saw? There were some who were becoming violent also. Were there anybody who was calm, playing guitar, playing garba, enjoying? था ऐसा कि नहीं था? I saw one group, they were saying they were playing that game, चिड़िया उड़, मैना उड़, then say इंडिगो उड़. क्यों उड़ाया? इंडिका कहाँ उड़ रही है, नहीं उड़ रही है? So people were having different thing. How come in the same situation people were responding differently? The same situation, there was one who was banging and being violent, and there was other who was very calm, and the one who was calm had done what? What was that one word? They had done what to the situation? They had accepted the situation. And please understand, when I say the word acceptance, acceptance does not mean that what is happening is right. But acceptance means that what is not in my control, I will not allow it to disturb me. There's a difference. It doesn't mean when I accept वो right है. वो patient बहुत सवाल पूछ रहा है, वो right है. वो जो बहुत कुछ हो रहा है वो right नहीं है. But I will not give them that much power
to disturb me. That shows how emotionally strong or resilience I have. अब आप अपनी चेकिंग करें, आप जिस एनवायरनमेंट में है नेगेटिव है, बट देन अगेन पीपल हैव लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशंस, बट देन इट इज़ अंडरस्टैंडेबल बिकॉज इट इज़ पीपल ना, इट इज़ देयर लव्ड वंस, चीज़ नहीं है, एक चीज़ खराब निकलती है, इसलिए मैंने कहा दुआएं भी बहुत है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत है. दिस इज़ प्रॉब्ली दी ओनली प्रोफेशन जहाँ मिस्टेक के बहुत चांस नहीं है. इट इज़ नॉट एन ऑब्जेक्ट, अच्छा नहीं था उसको हमने निकाल दिया. सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ सो दैट, बिकॉज आपसे कोई मिस्टेक हुई उसकी गिल्ट बहुत होती है, आपसे नहीं है, यू हैव डन योर बेस्ट, इट वॉज देयर कर्मा, दैट इज़ अनदर थिंग, बट वी हैव टू गिव इन आवर 100%. यू अग्री? डू यू वांट टू डू दैट? नाउ हाउ डू आई टेक केयर ऑफ माई सेल्फ? फ्यू स्टेप्स, हाउ डू आई टेक केयर ऑफ माई सेल्फ. अपनी इमोशनल रेजिलेंस बढ़ाएं कैसे कि वहाँ कुछ भी हो रहा है लेकिन वो चीज़, इमोशनली स्ट्रॉन्ग व्यक्ति का मतलब क्या है कि किसी की बात, कोई परिस्थिति, एनीथिंग दैट यू हियर ऑन द फोन, देयर इज लॉट ऑफ अप एंड डाउन देयर, बट यहाँ बिल्कुल स्टेबल है, अंदर बिल्कुल स्टेबल है. आप में से किसी को गुस्सा तो नहीं आता? किसको नहीं आता है? गुस्सा करना चाहिए, गुस्सा अपने आप आ जाना है. नाउ वी गो टू नेक्स्ट लेवल वेयर वी डोंट इवन टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी. हम कहते हैं आ जाता है. एंड द थर्ड लेवल इज उसने दिलाया. मैंने थोड़ा ना किया, उसने काम ही ऐसे किया जो उसने दिलाया. क्यों करते हैं हम गुस्सा? किस पर करते हैं? किस पर करते हैं? हाँ जी, बोलो बोलो, बोल दो. किस पर करते हैं? जूनियर्स पर करते हैं कि नहीं करते हैं? हम कर देते हैं, वो काम कर देंगे आउट ऑफ, when you get angry they will do things out of fear, but they are in fear. Your nurse is in fear, that person is in fear. There are chances of making mistakes. गो बैक टू स्कूल. कई बार वो होता था हम मैथ्स में कुछ कर रहे हैं ना, वो 2+2 हम सबको पता होता था 4 है, बट टीचर आकर के वुड स्टार्ट लुकिंग इन आवर डेस्क एंड देन 2+2 वुड बिकम 5. व्हाई? बिकॉज इन दैट मोमेंट आई कांट कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट प्रॉब्लम. माई माइंड इज थिंकिंग क्यों आए, क्या हुआ, सही हो रहा है, गलत तो नहीं हो रहा, पनिशमेंट तो नहीं देंगे, बाहर तो नहीं खड़ा होना पड़ेगा. एंड इन दैट फियर दैट 2+2 बिकम्स 5. फियर इज़ वेरी वेरी डैमेजिंग. अब वो एंगर से हमें लगा काम हो जाएगा, पर उसके अंदर फियर क्रिएट होगा. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, एंगर क्रिएट्स लॉट ऑफ डिसरिस्पेक्ट, ह्यूमिलिएशन इन एन एनवायरमेंट. सो व्हेन वी गिव अप एंगर, there is a very respectful environment, and as a team everybody is able to perform very very well. I remember one of our faculty sharing, she said she was doing a talk for nurses and there were 1000 sitting in that hall, and she said आपके stress का कारण क्या? It was all nursing staff. She said वो ऐसा बोलेंगे कि erratic timings हैं, patients वो करते हैं, ऐसा ऐसा मना बोलेंगे. And you know what was the answer उनके stress का? They said डॉक्टर साहब गुस्सा करते हैं. That was the reason for their stress कि वो गुस्सा करते हैं, और जब वो गुस्सा करते हैं तो उस चीज़ का जो impact है वो उनके ऊपर इतना पड़ता है. And then that faculty told them, she said पर गुस्सा तो patient भी करता है. आपका जो पेशेंट है वो भी कौन सा इतना वो होता है, वो भी कई बार कहता है दवाई नहीं लेना, ट्रीटमेंट नहीं लेना, वो भी इरिटेट होता है, वो भी गुस्सा होता है, वो भी तो ये सब करता है ना. तो देन आई सेड हाँ, पर वो तो पेशेंट है ना, वो पेशेंट है तो वो चलता है. एंड देन शी सेड ठीक है, कल जब आप डॉक्टर साहब को देखो तो अपने को क्या कहना, फिजिकली बीमार नहीं है लेकिन या. डू यू थिंक इट इज स्ट्रेंथ टू गेट एंग्री और इज इट अ वीकनेस? I was watching something. Have you heard of Kumar Mangalam Birla? Yeah, most of you, big industrialist. It was a little talk show, and he said to that person, "I can count how many times I've gotten angry." And he said 18 times in 29 years.
That's all. In 29 years, how many times? 18 times. And I'm sure he's doing a lot of work. ऐसा नहीं है काम नहीं हो रहा है. And said, why? He said, I remember this figure so clearly because it is a black mark on my chart that these are the people who are spending so much time, effort, energy for me, for my work. And how can I disrespect them? Because anger is disrespecting and humiliating somebody. And it said it's a reflection of my nature. It is not about them. It is about me. So I personally don't like to lose my calm and control. बिना गुस्सा किए काम हो सकता है? गुस्सा किए काम हो सकता है? हो सकता है कि नहीं हो सकता है? See, the first thing is when you get angry, you lose your peace of mind, you lose your health. Most importantly, you lose that relationship. किसी के ऊपर आप गुस्सा करते रहेंगे, वो काम करते रहेंगे. But the karmic effect of getting angry is that you lose the love for that person, for that. आप बाहर कर देंगे. Is there a difference between regard and respect? Is it a possibility कि कोई आपके लिए सब कुछ करता है, but they don't respect you? And there is a possibility कि कोई आपको बिल्कुल respect करता है, पर हर चीज़ आपके according नहीं कर सकता. ऐसा हो सकता है? So then I can out of fear do everything for you, but in my heart I might not respect you or love you, and that's it. Then उनके क्या फ़र्क पड़ता है? मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. नहीं फ़र्क पड़ता है because वो मशीन नहीं है. वो सोचते हैं, वो वाइब्रेशन रेडिएट करते हैं, वो आपके लिए वाइब्रेशन रेडिएट कर रहे हैं, वो वाइब्रेशन आप तक पहुंचेगा. एंड देयर विल बी अ टाइम यू विल से कि पता नहीं मुझे इतना खालीपन क्यों अनुभव होता है. आई हैव डन एवरीथिंग गुड, आई हैव डन सो मच. People think that, I have served the society, so I should be blessed and I should be feeling good. पर पता नहीं मुझे इतना खालीपन क्यों फील होता है, because lot of that vibration will deplete me. गुस्सा हॉस्पिटल से छोड़ सकते? सर आपसे शुरू होगा. सर तो रेडी है. What about you? करेंगे अगर आएगा तो? आ जाता है, पता ही नहीं चलता है. पहले यहाँ नेगेटिव होता है, फिर ही तो वर्ड्स के अंदर आता है कि नहीं? अच्छा ठीक है, 2 स्टेप विल डू इट. क्या करना है? सर ने कहा आ जाता है, हो जाता है. ठीक है, हो गया. अभी तक हम अवेयर नहीं थे. पहले तो हम करते हैं, बट कोई चीज़ जब हम बार बार करते हैं तो वो क्या बन जाता है? हमारा संस्कार. And sanskar is when you don't know, it just happens because you've done it so many times. It's like when you start driving the car for the first time, आपको कितना केयरफुल होना पड़ता है. कोई बात करे, आप कहते नहीं अभी नहीं बात करो. कोई रेडियो चलाए, आप अभी नहीं रेडियो चलाओ, बिकॉज यू फोकस ना. देन आफ्टर अ पॉइंट व्हेन यू आप मना बहुत प्रैक्टिस हो जाती है, देन यू आर टॉकिंग ऑल्सो, ईटिंग ऑल्सो, लिसनिंग टू म्यूजिक, एंड देन ऑल्सो यू रीच योर होम. होता है कि नहीं होता? ना हु वॉज ड्राइविंग द कार? दैट हैबिट, दैट संस्कार. यू डोंट कॉन्शियसली थिंक मुझे राइट टर्न लेना है, लेफ्ट टर्न लेना है, फिर भी आप अपने घर तक पहुंच जाते हैं क्योंकि वो डीप रूटेड हो गया. वो जो आपने कहा हो जाता है, पता ही नहीं चला, अब हो गया. बट इफ़ आई एम चूजिंग नॉट टू गेट एंग्री, तो जैसे होगा तो पता चल जाएगा. तो पता चल जाएगा ना, करने के बाद तो पता चल जाएगा. व्हाट शुड बी द नेक्स्ट स्टेप अगर कर दिया उसके बाद? हाँ जी, रिग्रेट करके तो कुछ नहीं होगा, बिकॉज रिग्रेट इज नेगेटिव एनर्जी. इट्स गोइंग टू ब्रिंग यू डाउन. इट इज़ नॉट गुड फॉर यू. रिग्रेट एंड गिल्ट्स आर नॉट. 1 सेकेंड रियलाइजेशन इज ओके, बट बहुत ज़्यादा रिग्रेट क्रिएट करना, यू आर डिप्लीटिंग योर सेल्फ. सो वॉट डू वी डू? कर दिया हमने गुस्सा. अब जिस पर किया वो व्यक्ति क्या है? मैंने किसी पर गुस्सा किया. नाउ इफ दे आर इमोशनली वीक, दे विल एक्सपीरियंस हर्ट. व्हाट कैन आई डू उस इफेक्ट को ख़त्म करने के लिए? What can I do to reduce the, उनके मन में नेगेटिव चल रहा है, वो आपको वापस बोल नहीं सकते. कुड बी योर जूनियर. आपने कर दिया, वो सोचे जा रहे, हर्ट हो रहे हैं. देयर आर हाई चांसेस दे विल एंड अप मेकिंग अ मिस्टेक. वेरी वेरी डैमेजिंग. When you are hurt, you end up making more mistakes. You want their efficiency to increase. More than that, you are leaders. You are there to empower them. Okay, now there's also a difference between anger and being assertive. There are times when we need to be assertive. We need to have tough conversations. We need to take a disciplinary action. All that is okay. Anger is only disturbance here. Anger does not mean anger है आपने कुछ गलत किया, मैं डिस्टर्ब हो गया और मैंने फिर कुछ नेगेटिवली रिस्पॉन्ड किया.
either I criticized or I said something which is very negative. आपने गलती करी, but I was stable, and then whatever I had to say assertively किया, disciplinary action लिया. At times we have to ask somebody to leave. Anything. Action जो बाहर हो रहा है वो तो करना ही है. We're not becoming passive. The only thing we are saying is that there are people who are not going to be my way all the time. I am not going to allow them to disturb me. वो कर सकते कि नहीं कर सकते? Can I be assertive and not angry? Be assertive, very firm but not angry? करना चाहिए कि ये नहीं करना चाहिए? किसके लिए करना चाहिए? किसके लिए करना चाहिए? I was reading the other day where Buddha said something, it just really touched me. He said, आप गुस्सा करेंगे उसकी सज़ा नहीं मिलेगी, गुस्सा ही अपने आप में सज़ा है. गुस्सा करने की कोई सज़ा नहीं है, लेकिन गुस्सा ही सज़ा है क्योंकि उस मोमेंट में you lost your peace of mind. Your health is going to get impacted, your relationship is going to get impacted. And you know, जब कोई चीज़ संस्कार बन जाती है तो उसको ये नहीं पता चलता है कि मेरे सामने कौन है. एक बार पत्थर फेंकने की आदत पड़ जाए ना, फिर ये नहीं पता चलता कि नाउ दिस इज़ नॉट वर्क प्लेस, दिस इज़ नॉट हॉस्पिटल, दिस इज़ नॉट माई स्टाफ, दिस इज़ माई फैमिली. वो संस्कार को ये नहीं पता चलता. So once you get used to getting angry, then you also get angry with your family and you end up giving pain to those people who you love the most. हो जाता है ऐसा कि नहीं हो जाता? आपका इंटेंट नहीं होता, पर वो अभी क्या बन गया आपका? आपकी वो हैबिट बन गई है, तो वो हैबिट कब इमर्ज हो जाती है पता ही नहीं चलता. सो फर्स्ट थॉट इज रियलाइजेशन, सेकेंड इज चूजिंग दैट आई डोंट वांट टू डू इट, थर्ड इज हो जाता है नो प्रॉब्लम, जस्ट क्विकली अपोलोजाइज. क्विकली अपोलोजाइज. आई एम सॉरी नॉट फॉर व्हाट आई सेड, आई एम सॉरी फॉर हाउ आई सेड. Not for what I said, but I am extremely sorry for the way I said. I could have been more respectful. परमात्मा हमें सिखाता है अपनों के लिए झुकना कमज़ोरी नहीं मानता है. अपनों के लिए झुकना कमज़ोरी नहीं, वो हमारे अपने हैं, उसमें ईगो नहीं लानी होती. बहुत उसके अंदर ईगो आती है तो वो हमारे से दूर हो जाते हैं. हमारी टीम हमारी फैमिली है, उसको हमारा वाइब्रेशन भी पिकअप होना चाहिए. बोलने से पहले उसको पता चल जाना चाहिए मैं उसको क्या कहना चाह रही हूँ. दैट विल हैपन व्हेन वी हैव वेरी गुड रिलेशनशिप. दे विल पिक अप द वाइब्रेशन. देयर इजंट इनफ टाइम समटाइम्स टू कम्युनिकेट एट द वर्बल लेवल, but there is such close relationship that you can pick up people's vibration. How we can do it in the family? We can look at their faces and we can understand because there is great bonding. So one thing, stress, anger, guilt, these are signs of low emotional resilience. Now couple of steps to increase it. Just another few minutes, couple of steps to increase it. Physical body को अगर आपको strong बनाना है तो क्या करना पड़ता है? Exercise and अच्छा, diet और exercise में more important component? Diet. How much diet, how much exercise? 70% diet, 30% एक्सरसाइज. सिमिलरली फॉर द माइंड. फ़र्क ही नहीं है. जैसे बॉडी के लिए डाइट और एक्सरसाइज है, इधर भी डाइट चेंज किया आपका मन स्ट्रांग होना शुरू हो जाएगा. व्हाट इज डाइट फॉर द माइंड? फूड फॉर द माइंड? नो. थॉट्स इज समथिंग दैट माइंड विल क्रिएट. फूड इज समथिंग दैट यू विल हैव टू टेक इट फ्रॉम आउटसाइड. यू नो लॉट ऑफ पीपल विल लाइक मुझे बॉडी बहुत फिट चाहिए बट आई डोंट लाइक हेल्दी फूड, आई लाइक जंक फूड. I like junk food but I want healthy food. हो सकता है? नहीं हो सकता. Similarly, if you want healthy mind, you need to consume healthy food. And what is food for the mind? It is not thoughts. Thoughts आपके मन ने create करने हैं. जो आपको खाना खाना है वो बाहर से खाना है. What is food for the mind? हाँ जी, एनर्जी, वाइब्रेशन, वो तो आपको यहाँ नहीं मिलने वाली. अनफॉर्चुनेटली आपके स्थान पर तो जो एनर्जी है इट इज़ मेजरली you can create it and one should try. That is why they say that hospitals should be like temple. But majority time वहाँ पर कौन रहते हैं? डॉक्टर्स, नर्सेस, स्टाफ. एंड इफ दे आने वाले पेशेंट और उनकी फैमिली तो देखो थोड़े से दर्द में ही होते हैं. It is the staff and people here who are elevated. They will create that feeling. We have a hospital. आप कभी जाएं तो विजिट करना माउंट आबू में. That's ग्लोबल हॉस्पिटल.
किसने देखा है, कभी सुना है? हाँ, there are couple of people. Now everybody who is there has lot of disciplines in their life. And because there are a lot of disciplines, the environment, जिन्होंने हाथ उठाया था, do you think the environment is different there? There is a difference? Do you feel that? This is not because of the patient, they come in pain, it is because of the doctors and the staff. And one difference which I was talking, one thing that everybody does there every single day, now the food for the mind is what you read, listen and see. So in one word, it's the information. जैसा चित्र वैसा चरित्र, जैसा content वैसा character. What is the kind of content that we are consuming today? कैसा content है? Whether it's technology, whether it's news, whether it's films, what is the kind of content that what is the energy that we pick from that? Negative. And so how will our mind become healthy? I was with a director the other day, film director, very, very senior director. And he said, क्या करे, अभी दो ही चीज़ें बिकती हैं. That was his exact line. क्या करे? Profit, अगर आपको, if you want to make a film with a profit, there are only two things that sell. And do you know which were those two things? Can you imagine? Violence and lust. He said, क्या करे? These are the only two things. That's only when the film is becoming a hit. So नहीं भी ज़रूरत होती तो एक song डाल दो, नहीं भी ज़रूरत होती तो ये डाल दो. Now this is what we are consuming, violence and all of that, and then we want a mind which is healthy. Mind तो ऐसा हो गया कि घर में 5 मिनट भी कोई लेट होता है, 5-10 मिनट भी कोई बच्चा लेट होता है. What are the thoughts that come to our mind? नेगेटिव आते हैं कि नहीं, क्या हो गया, और जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है पता नहीं एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, आता है ऐसा थॉट आता है कि नहीं. टू एन एक्सटेंट समटाइम्स वी सी थिंग्स विच वी कैन नॉट इवन से, बोल भी नहीं सकते. और वैसे कहेंगे सोचने से पहले बोलो, पर परमात्मा हमको कहते हैं सोचने से पहले भी सोचो. थिंक व्हाट यू आर थिंकिंग. सो द वन शिफ्ट दैट वी हैव टू ब्रिंग इज, as a doctors, try 20 minutes in the morning. Can you take out 20 minutes or it is too much? It's too much or it is possible? Anji? 20 minutes in the morning where I consciously listen to something positive. Listen or watch or read. I am telling you, within 3 weeks, not more than 3 weeks, just after 3 weeks, you will see a huge difference in you, because we only think what we are listening, watching and reading, that is what our mind processes. So what we have to watch is, there's so much content there. जैसे आप कहीं प्रोग्राम में जाते हैं, वहाँ बुफे लगा होता है ना, there's everything there, fried also, healthy also, salad also. Now somebody who's health conscious will be very mindful of what they eat. Similarly, there's every kind of content available on that little phone that we have, and we use it quite a bit. Just type videos on forgiveness, videos on compassion, videos on, and 20 minutes consume that. Just consume it. And when you do that, you will see a shift in yourself. Content is a very, very powerful thing. So you have to disconnect yourself from the negative content, and you have to start watching something which is positive. That is how I think we're sitting here today also, because Sir heard that content for maybe a minute or two in the morning. And was it helpful? Just 1 minute or two, not even more. You know, positive content ज़्यादा नहीं चाहिए होता. चिप्स का पूरा पैकेट खा लेते हो, है ना, because it is tasty. Anything which is healthy, you can't eat a lot. But you eat less, but it is very, very healthy. Similarly, for spirituality, you don't need a lot. But पहले क्या होता था? It was there in the system. Most of us, when we got up in our homes, कोई भजन चल रहा होता था, कोई सत्संग चल रहा होता था कि नहीं होता था? Environment was only so positive. We grew up in that environment. Now सुबह सुबह क्या चल रहा होता है? क्या चल रहा होता है कई बार in most homes early in the morning?
अभी प्राइम टाइम जो रात का है वो भी न्यूज़ का हो गया. सो 6 o'clock in the morning and 9 o'clock in the evening, both the times which are very very sensitive, times to wind up and times to begin our day. वो जो कहते थे सायंकाल और संध्या काल, तो किसको याद करो, किसको याद करो, भगवान को. अभी हम किसको याद कर रहे हैं. So we are not charging ourselves, there's no source. And if we don't take care of ourselves, कुछ करेंगे ही नहीं तो emotional resilience बढ़ेंगे कैसे. So one is 20 minutes of content in the morning. Who is ready to do it? Who's ready to do it? 20 नहीं हो तो 15, will you? आप 1 week experiment with this. I am not even asking you to go to the center, even though the center is 2 minutes away. हमारी बहनें बैठी हैं वसंत कुंज सेंटर की. All I'm saying is begin it on your technology first. Why? किसी चीज़ का एक्सपीरियंस होगा तब आप सेंटर तक भी जाएंगे मेडिटेशन सीखने, लेकिन जब तक एक्सपीरियंस नहीं होगा तब तक नहीं होगा. सो व्हेन यू एक्सपीरियंस इट विल मोटिवेट यू. सो दैट इज़ वन थिंग. सेकेंड थिंग विच इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी हेल्पफुल, there is something that we practice everywhere in our organization. We call it traffic control of the mind. We take 1 minute break after every hour of 2 hour, 1 hour or 2 hour, just 1 minute silence. And in that 1 minute silence we connect with ourselves. जैसे सड़क पर जब बहुत ट्रैफिक हो जाता है, टू मच, तो ट्रैफिक पुलिस चारों तरफ के ट्रैफिक को रोक देती है. हैव यू सीन दैट? एंड देन दे डायरेक्ट इट, नहीं तो क्लटर हो जाएगा. थॉट्स का कई बार क्लटर हो जाता है. द मोमेंट वी टेक आउट दैट 1 minute and we reflect that there is lot of pain, take a 1 minute, transform your thoughts and get back. It is very very empowering. जो decisions आप सारा दिन में नहीं ले पाएंगे वो उस 1 minute के silence में ले पाएंगे. I met a Navy Admiral today and he is practicing meditation for a long time. And he said, I was not a very spiritual person, but this helped me so much because we had to take decisions that is going to impact the whole of the country. And in that 1 minute when I took that silence and there was no clutter, I was able to take right decision. So instead of thinking negative, take that pause, reflect, transform your thought and come back. Can we do that? Maybe just 2-3 times in a day. जोड़ दें उसको किसी चीज़ से, पानी जब आप पीते हैं किसी चीज़ से, और इनिशियली आप कुछ थॉट्स भी बोल सकते हैं उस समय पर, like I am instrument of God. It is not wholly and solely me. Who am I? I am not God, but who am I? Instrument of God. वो प्रेशर कम हो जाता है. होता है कि नहीं होता है? प्रेशर कम हो जाता है. I am instrument of God. Could be one thought. I am calm and stable. हम इकट्ठे करें ये 5 thoughts. One is, एक साथ बोले, I am an instrument of God. I am calm and stable. A powerful soul. आवाज ही नहीं आ रही. I am a powerful soul. पहला कौन सा था? I am an instrument of God. I am calm and stable. I am a powerful soul. अभी कोई अगर एक चीज़ आपकी कोई वीकनेस है, फॉर एग्जाम्पल गुस्सा बहुत आता है, देन यू कैन से आई एम अ पीसफुल सोल. ये नहीं बोलो गुस्सा बहुत आता है, गुस्सा बहुत आता है, लेकिन आई एम अ पीसफुल सोल. डर बहुत लगता है किसी को डर? अगर डर लगता है तो क्या बोलना पड़ेगा? डर का ऑपोजिट क्या है? आई एम अ फियरलेस सोल. वॉट यू गोइंग टू से अगेन एंड अगेन विल बिकम द रियलिटी. थॉट्स will become the reality. यही बोलते रहेंगे प्रेशर बहुत है, स्ट्रेस बहुत है, ये बहुत है, ये बहुत है. It is going to deplete you. So the second thing is taking out 1 minute in a day and practicing that meditation. And third and last, before we sleep, 3 चीज़ें करनी है every single day. एक, gratitude. मत लीजिए इसको इजी. द मोमेंट यू हैव ग्रैटिट्यूड, कॉन्शियसनेस इज पुल्ड हियर. You are able to see the solutions. Gratitude is not only thanking, it is raising your vibration. One is complain and blame. ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है. And one is being thankful. आज ये हो गया, आज ये हो गया, आज इसकी मदद मिली. Find few things to be grateful every day. It is pulling you up. It is pulling your consciousness up. And when you pull your consciousness up, you are able to find a solution for a difficult problem. So one is gratitude. Second,
अगर किसी को दुख दिया है, बोल करके कुछ करके हो गया, क्या करना है? क्या करना है? Can we ask for forgiveness? Can we just say sorry? Can we do it like one word? उनका negative बंद, हमारा negative बंद. They sleep peacefully, we sleep peacefully. When we come back, 100% there. Otherwise, their thoughts don't allow us to be at peace. अगर दिया है, अच्छा, अगर लिया है, किसी ने कुछ कहा and I am thinking negative, लिया है, तो क्या करना है? Let go, full stop. They were in pain at that time. उस समय वो कौन थे? डॉक्टर साहब नहीं थे. उस समय वो कौन थे? कौन थे? नर्स. कौन थे? पेशेंट. खत्म. लेट इट गो. जितना ये छोटा छोटा प्रैक्टिस करेंगे, रेजिलियंस बढ़ने लगेगी. 20 मिनट एक्सरसाइज करते हैं, फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ती है. करते हैं तो बढ़ती है. कुछ नहीं करेंगे तो अपने आप नहीं बढ़ती. एक टॉक से नहीं बढ़ती है. This one talk is just a realization that I will have to put in some effort. थोड़ा भी करेंगे, so that will start increasing. And just one more thing, I know I'm exceeding the time. Please be very, very, very ethical. In this profession, it is deep karma. People come, surrender their loved ones, are ready to sell their houses, are ready to sell everything. At any place, we do anything, it is very, very deep karma with their mind, with their family, with their money. It does come back in some form or the other. जो भेजते हैं वो लौट करके आता है. भेजते समय हमारे पास बहुत आंसर्स होते हैं कि हम ये क्यों कर रहे हैं. लौट करके जब आता है तो हम कहते हैं भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया. Most people, भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया. When it comes back, you can't do anything. It is destiny. All you can do is accept. When you're sending any energy, that is the time to ask yourself, मैं ये क्यों कर रहा हूँ. Even there are times when we will have to stand all alone. But remember, the only thing that goes with you is your karma, your punya. So please be very firm in that. And when we do right, right is going to happen. Don't be influenced. It's very deep karma. You are inviting a lot of pain in your life. So when we are very, very ethical, then there is nothing. Then there can be a lot of upheaval in the world. People can lose their jobs. Things can happen. Nothing is going to happen to you. एक लाइन है परमात्मा की, आपका जो भविष्य है वो वर्तमान की परछाई है. भविष्य क्या है? वर्तमान की परछाई है. भविष्य का कुछ नहीं कर सकते. वर्तमान में जितना ठीक चलेंगे उतना हमारा भविष्य जो है वो बिल्कुल ठीक है. ठीक है. Do we take another 2 minutes of silence and end this? Just 2 minutes of silence. Sit comfortably, relax your body. 2 minutes. That I just don't have to treat the patient, but I also have to heal them. मेरे मन की स्थिति का प्रभाव उनके मन पर पड़ता है. अगर मेरा मन शांत है, रहम दिल है, तो हम भले सबको बिल्कुल ठीक नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी उनकी हीलिंग को फास्ट कर सकते हैं. उनके चैलेंज को फेस करने के लिए मदद कर सकते हैं. हमारे 2 मिनट उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है. वो 2 मिनट सिर्फ बात नहीं करनी, लेकिन भासना भी देनी है. बात करते करते ऐसा प्योर वाइब्रेशन रेडिएट करना है कि जो भी चैलेंज उनके सामने है वो उसको फेस कर सके. और हर रोज़ भगवान का धन्यवाद भी करना है
और जो दर्द में आए हैं उनके लिए दुआ भी करनी है। अपने पाठ का धन्यवाद, अपने रोल के लिए ग्रैटिट्यूड, and we have to pray for people who come in pain. It is my duty to treat and heal them. It is my duty to support them in their pain. My one positive word gives them courage, gives them enthusiasm. Sometimes it's a very long battle for them. Their whole world is shifted. Be kind. Be very, very kind. And don't treat on your own. Stay combined with Almighty Authority. वो बुद्धिवानों का बुद्धिवान है, आप इंस्ट्रूमेंट हैं। जो आपको नहीं आता वो आपकी बुद्धि को टच करके भी करा लेगा। Have faith in him and then miracles will happen. Om Shanti. So much.